Hello and welcome everyone. This side Imtiaz Ahmed, CSET faculty, Drishti IS. Today we are going to start a series of 16 episodes in which we will cover 32 most important topics for UPSC CSET Prelims 26. Now we are going to start most important topic, number system, in which we will cover the divisibility rule, unit digit, inequality, exponent of prime, types of number. फर्स्ट सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर में. फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस नंबर सिस्टम्स. अगर आप इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट पे देखें तो लगातार वहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं? इवन एंड ऑड, a number which is in the form 2n is called even number where n is integer. Yeah, or a number which cannot be divided by 2, या a number whose last digit is 0, 2, 4, 6, 8. A number which is completely divisible by 2 is called a even number. आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं. लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8 is called a even number. A number which is in the form 2n, where n is a integer is called even number. A number which is completely divisible by 2. Completely divisible by 2 means remainder should be 0. If we put n is equal to 2, 2 into 2 is 4. 4 is a even number. If we put n is equal to 4, 2 into 4 is even number. If we put n is equal to 10, 2 into 10 is even number. दोस्तों सिर्फ यही इवन नंबर नहीं होता है. आपके जो क्वेश्चंस है, आप पेपर देखिए 23 से, 22 से, 21 का, वहां पे इस टाइप के आपको स्टेटमेंट बेस्ड 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे. ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आपको एज्यूम नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, आप तुरंत 30 सेकेंड 40 सेकेंड में क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे. ए नंबर विच इज इन द फॉर्म 2n plus 1, 2n plus 1 या 2n minus 1, 2n plus 1 या 2n minus 1 is called a odd number. A number which is not completely divisible by 2. A number whose last digit is 1, 3, 5, 7, 9 is called a odd number. Last digit is 1, 3, 5, 7, 9. We know even is, अगर मैं कोई भी odd number है, if we add 1 odd number plus 1 we get even number. या if we subtract odd minus 1 then also we get even number. If we add even में plus 1 then we get odd number. Even minus 1 is also a odd number. So 2n is a even number. 2n, we know that 2n is a even number. If we add even number plus 1 means 2n plus 1 we get odd number. So 2n plus 1 represent odd number. And if we subtract even minus 1 then we will get odd number. So if 2n is in the form of even number, 2n minus 1 is odd number. So 2n plus minus 1, अगर मैं combine लिखूं 2n plus minus 1 also represent a odd number. 2n plus minus 1 also represent a odd number where n is an integer. If we put n is equal to 6, if we put any value of integer then we will get odd number. If we put n equal to 6, so 2 into 6 plus 1 is 12 plus 1 is 13 is an odd number. If we put n is equal to 6, so 2n minus 1, 2 into 6 minus 1 is 12 minus 1, 11
is also odd number. If we put any value of integer, then 2n plus minus 1 represent odd number. You can take any value of integer. If I take n is equal to 20, then 2 into 20 plus 1, 40 plus 1 is 41, which is odd number. 2 into 20 minus 1 is 40 minus 1 is 39, is odd number. So 2n represent even number and 2n plus minus 1 represent odd number. Clear? Next, if we multiplied even, E1 मतलब even 1, E1 represent even 1, E1 means represent even 1. If we multiplied even number, even 1, even 2, then we get even number. Example, 2 into 3 is 6, is an even number. If we multiplied even 1, even 2, even 3, then also we get even number. Then we also get even number. If we multiplied any times even number, then we get even number. अगर आपके पास सारे numbers even है, we multiplied any times, E1, E2, E3, E4, E5, E6 is even number. If we multiplied any even number any times, means odd times or even times, then we get even number. Even 1, even 2, even 3, even 4, even 5 into even 6 is also a even number. But if we multiplied odd number, odd 1 into odd 2 is 3 into 7 is 21, is odd number. Odd number. If we multiplied odd 1, odd 2 into odd 3, odd 1 is 1, odd 2, any odd number, you can assume any odd number. Example, odd 1 is 1, 1 is odd number, odd 2, you assume any odd number, is 3, odd 3 is 5, is 15, so result is odd number. If we multiplied odd number even times, 2 times, then also we get odd number. If we multiplied odd number 1, 2, 3 odd times, then also we get odd number. Same case even के साथ भी हो रहा है. If we multiplied even number even times 1, 2, then also even number. If we multiplied even number odd times, then we get also even number. If we multiplied odd number 5 times, if we take odd number 4 times and one even number, then result is even number. Odd, अगर odd आपका 5 times multiplied है, then आपका odd number आया. सर जी यहां पे तो odd number आ गया, odd 1, odd 2, odd 3, odd 4, odd 5. Odd 5 result is odd number. लेकिन इवन नंबर E1 ये आपके 2n का फॉर्म है. इवन, एनी इवन नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2n. एनी इवन नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2n. अब we multiplied by 2. If we multiplied by 2 any number, 2 multiplied by odd, we get even number. 2 multiplied by even, we get even number. By example, 2 into 3, 3 is odd, so we get even number. 2 into even is 4, is odd number. If 2 multiplied by any number which is odd or even, then result is even number. So odd 1, odd 2, odd 3, odd 4, odd 5 is a odd number. When odd number is multiplied by E1 is even number which is in the form of 2n. So when n is integer, odd number is integer, and multiplied by 2, any number multiplied by 2 is even number.
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया दोस्तों कि अगर आपके सारे नंबर ऑड 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 हैं, देन बंद करके आप कहिए कि ये ऑड नंबर होगा। सारे नंबर इवन है तो भी इवन होगा। लेकिन अगर आपके ऑड नंबर है, ऑड 1, ऑड 2, ऑड 10, अगर एक भी इवन नंबर इन्वॉल्व हुआ, एक क्या, तो रिजल्ट इज इवन नंबर। ऑड नंबर की पॉसिबिलिटीज सिर्फ एक जगह है, जब सारे नंबर ऑड हैं। अदरवाइज आपका एक भी नंबर इवन आया, देन रिजल्ट इज इवन नंबर। ये केस है आपका मल्टीप्लीकेशन के साथ, ये केस है आपका मल्टीप्लीकेशन के साथ। दिस इज द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं एडिशन की बात करूं, मैं एडिशन की बात करूं, एडिशन की, ठीक है, इवन 1 प्लस इवन 2, एग्जांपल 10 प्लस 6 इज 16, इज इवन नंबर। इवन 1 प्लस इवन 2 प्लस इवन 3 प्लस इवन 4 प्लस इवन 5. If we take even number even times, even 2, then result is even number. If we take even number odd times, 1, 2, 3, 4, 5, 5 number, even number 5 है, then result is, by example, 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10, 10 plus 8, 18, 24, 48 is 30. 30 is a even number. 30 is a even number. So, यहां से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि अगर आपका इवन नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, एडिशन में है, प्लस के साथ है, चाहे इवन नंबर ऑड टाइम्स हो, चाहे इवन नंबर आपका इवन टाइम्स है, इवन 3 टाइम्स हो, इवन 7 टाइम्स हो, इवन 5 टाइम्स हो, इवन 10 टाइम्स हो, रिजल्टेंट आपका हमेशा इवन नंबर मिलेगा। रिजल्टेंट हमेशा आपका इवन नंबर मिलेगा व्हेन ऑल नंबर इज इवन। ठीक है, ये सेम चीज दोस्तों माइनस के साथ भी होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ साइन। प्लस के साथ है, एग्जांपल इवन 1 माइनस इवन 2, 10 माइनस 4, फर्स्ट इवन नंबर इज 10 एंड सेकेंड इवन नंबर इज 4, तो 10 माइनस 4 इज 6, इज इवन नंबर, इवन नंबर। इवन 1 माइनस इवन 2 माइनस इवन 3 इज रिजल्ट इज इवन नंबर, रिजल्ट इज इवन नंबर। इवन 1 प्लस इवन 2 प्लस इवन 3 माइनस इवन 4 माइनस इवन 5 प्लस इवन 6, रिजल्ट इज इवन नंबर, इंडिपेंडेंट ऑफ साइन। साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सारे नंबर प्लस में है, सभी नंबर आपके इवन है, देन रिजल्टेंट इज इवन नंबर। अगर सभी नंबर आपके इवन प्लस में हो या सभी नंबर माइनस में हो, तो भी रिजल्टेंट इज इवन नंबर। या कुछ नंबर्स आपके इवन नंबर प्लस के साथ हो, कुछ नंबर माइनस के साथ हो, तो भी आपका रिजल्ट इवन नंबर होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ साइन है, प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। ये मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। अगर मैं इवन नंबर को ऐड किया इवन टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, देन रिजल्टेंट इज इवन। अगर इवन नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो भी सारे नंबर इवन है, तो रिजल्ट इवन आएगा। अगर कुछ नंबर आपके प्लस के साथ है, कुछ माइनस के साथ है, रिजल्टेंट इज इवन नंबर। करेक्ट है? यस सर। नेक्स्ट, ऑड नंबर, ऑड 1 प्लस ऑड 2। We take any odd numbers. Example, first odd number is 3, second odd number is 5. 5 plus 3 is 8. 8 is even number. Oh, 8 is even number. Example first. अगर मैंने odd number को 2 times लिया, it means even times, then resultant is even number. Independent of sign है. Independent of sign means odd 1 minus odd 2 भी क्या आएगा? Even number. माइनस ऑड 1 माइनस ऑड 2 भी क्या आएगा? इवन नंबर। ऑड 1 माइनस प्लस ऑड 2 भी क्या आएगा? इवन नंबर। इफ 8 इज इवन नंबर, देन माइनस 8 इज ऑल्सो इवन नंबर। इफ 12 इज अ इवन नंबर, देन माइनस 12 इज ऑल्सो इवन नंबर। इफ 20 is an even number, then minus 20 is also even number. If we take odd number 3 times, odd 1 plus odd 2 plus odd 3.
odd first is 3. You can take any value of odd number. You can assume any value of odd number. 3, 5 and 7 is 15 is odd number. Okay. It means if odd number is even times, odd number 2 times, odd number 4 times, odd number 6 times, odd number 8 times, then resultant is even number. Most important is then resultant is even number and it is independent of sign. Independent of sign. Sign plus minus का कोई फर्क नहीं पड़ता. If 20 is even number, then minus 20 is also even number. If 21 is odd number, then minus 21 is also odd number. Correct है? If odd number is odd times, then resultant is odd number. If odd number is 3 times, if odd number is 5 times, if odd number is 7 times, odd number is 9 times, then resultant is odd number. If odd number is even times, 2 times, 4 times, 6 times, 8 times, 10 times, then resultant is even number. So, odd 1 minus odd 2 plus odd 3 plus odd 4 minus odd 5. इंडिपेंडेंट ऑफ साइन, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपने कहा सर ऑड इज 5 टाइम्स, 5 टाइम्स आया है, इट इज मतलब इट इज ऑड टाइम्स. ऑड नंबर 5 टाइम्स आया है. अगर ऑड टाइम्स आएगा देन रिजल्टेंट इज ऑड नंबर. आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे कहेंगे ये ऑड नंबर होगा. आपको एग्जांपल अभी हम क्वेश्चंस कराएंगे पीवाईक्यूज, आप देखेंगे कि आपको एक भी वैल्यू एज्यूम नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे जवाब देंगे कॉन्सेप्ट के तौर पे. इवन और ऑड नंबर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि विच इज डिवाइडेड बाई 2, विच इज नॉट डिवाइडेड बाई 2. बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया, आप मुझे बताइएगा ऑड 1 प्लस ऑड 2 माइनस ऑड 3 प्लस ऑड 4 माइनस ऑड 5 माइनस ऑड 6 माइनस ऑड 7 माइनस ऑड 8 माइनस ऑड 9. 9 टाइम्स 9 नंबर है, ऑड टाइम्स है, तो आप कहेंगे सर जो इनको सॉल्व करने के बाद हमें एक नया नंबर मिलेगा विच इज ऑड नंबर. जो इनको सॉल्व करने के बाद हमें एक नया नंबर मिलेगा विच इज ऑड नंबर. क्लियर है? अब मुझे एक बार कमेंट में बताइएगा इवन 1, खूब सारे नंबर हैं, इवन 1, इवन 2, माइनस इवन 3, माइनस इवन 4 प्लस ऑड 1 प्लस ऑड 2 माइनस ऑड 3 माइनस ऑड 4. यहां पे कौन सा नंबर मिलेगा आपको? बताइए कौन सा नंबर मिलेगा? आपने कहा सर इवन नंबर चाहे ऑड टाइम्स है चाहे इवन टाइम्स, यहां पे रिजल्ट आपको इवन मिलेगा. इन सबको सॉल्व करने पे हमने कहा हमें इवन मिला. करेक्ट. अब आपने कहा ठीक है वो प्लस के साथ आए माइनस के साथ आए, इंडिपेंडेंट ऑफ साइन है. अब यहां पे ऑड आपका 4 टाइम्स है, 1 2 3 4. ऑड नंबर आपका इवन टाइम्स है. सो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे 4 टाइम्स का मतलब इवन टाइम्स है, देन रिजल्टेंट इज ऑल्सो इवन नंबर. एग्जाम्पल के तौर पे हमने 5 कहा. ठीक है, यहां पे इवन नंबर निगेटिव आए पॉजिटिव आए कोई फर्क नहीं पड़ता. ये नंबर आपका इवन है और यहां पे ऑड जो है 4 टाइम्स है. 4 टाइम्स का मतलब इवन टाइम्स है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहां पे हमें इवन नंबर मिलेगा और ये इवन मिलके रिजल्टेंट इज इवन नंबर. रिजल्टेंट इज इवन नंबर. करेक्ट है? यस या नो? यस सर कमेंट में करें एक बार. एग्जाम्पल माइनस ऑड 1 माइनस इवन 1 इवन 2 इवन 3 प्लस ऑड 1 प्लस ऑड 2 प्लस ऑड 3 माइनस ऑड 4 माइनस ऑड 5 इज, बताइए. आपने कहा सर यहां पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें तो इवन नंबर ही मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा. और यहां पे ऑड नंबर कितने टाइम्स है? 5. ऑड नंबर अगर आपका 5 टाइम्स है, इट मींस ऑड नंबर अगर 5 है, 5 का मतलब ऑड टाइम्स हो गया. एंड ऑड टाइम्स हो गया तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ऑड टाइम्स का मतलब इनको सिंप्लीफाई करने पे हमें एक नया ऑड नंबर मिलेगा विच इज ऑड 6. अब इवन नंबर प्लस ऑड नंबर सिर्फ एक बार आया है विथ ऑड टाइम्स, तो रिजल्टेंट इज ऑड नंबर.
you can take any example value. If even number is 10 and odd number is 7, so 10 plus 7 is 17. Why? Odd number one times आया ना 6, मतलब एक बार आया. अगर आपका odd number एक बार आया odd times 1, 3, 5, 7, 8, 9, then resultant is odd number. If even odd number is even times 2, 4, 6, 8, 10, then resultant is even number. करेक्ट है? आइए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं. आपके यूपीएससी पीवाईक्यूज में है, ठीक है. 23 यूपीएससी सी सेट 23 का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है. 3 of the 5 positive integer p, q, r, s, t are even and 2 of them are odd. We don't know which is even and which is odd. p is even, don't, नहीं पता. q is even or odd, no पता, नहीं पता. Any 3 number which is even and any 2 number which is odd. We don't know who is even and who is odd. But हमें यह पता है कि 3 तो इवन है पक्का. 2 of them are odd, not necessary in order. Consider the following. Statement 1 is p plus q plus r, p plus q plus r minus s minus t is definitely even. डेफिनेटली देखिए, आपका क्वेश्चन कभी पूछेगा डेफिनेटली, कभी पूछेगा कैन बी. डेफिनेटली मतलब 100% हम कुछ भी रखें इवन ही आएगा. ऑड एक बार भी नहीं आ सकता, आप चाहे कोई भी वैल्यू रख ले. कैन भी मतलब अगर एकाध भी पॉसिबिलिटीज है तो चल जाएगा. बट डेफिनेटली का मतलब, ऑलवेज का मतलब कि हमेशा 100% ट्रू है. तो वी डोंट नो हु इज ऑड एंड विच इज ऑड एंड विच इज इवन. तो आप एग्जाम में क्या करने लगते हैं? एज्यूम करने लगते हैं. आपने सपोज पी एज्यूम किया 10 इवन, तो कैसे आपको पता कि 10 इवन ही है, पी इवन ही है? पी कैन बी ऑड, पी कैन बी ऑड, ठीक है. तो वहां पे गलती होने के चांसेस है. आपको पता है 3 इज इवन, 3 इज इवन, एनी 3 इज इवन. आप कोई भी 3 इवन ले लो. सपोज Q इज इवन, आप यू कैन टेक एनी 3 विच इज इवन. इवन 1, इवन 2, इवन 3. मैंने 3 इवन लिया और P1 ऑड एंड T1 दो ऑड ले लिया. करेक्ट. आपसे कहा 3 इज इवन एंड 2 इज ऑड. 3 तो इवन है ना, 3 इवन कोई भी हो सकता. इवन 3, 3, 3. इट मींस अगर ये इवन 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 ऐड होगा तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? इवन नंबर मिलेगा. 3 इवन अगर ऐड होगा, 3 इवन, अगर मैं 3 इवन टर्म को पकड़ रहा हूं, अगर वो ऐड होगा तो आपको इवन नंबर मिलेगा. बाकी 2 ऑड बचे. 2 ऑड इज इवन टाइम्स. अगर 2 ऑड है, अगर ये 2 ऑड है तो कोई भी 2 ऑड अगर इवन टाइम्स ऐड होगा तो आपको एक नया इवन नंबर मिलेगा. अब यहां पे सारे नंबर इवन है, देन रिजल्टेंट इज इवन नंबर. मात्र 10 सेकेंड आपको लगेगा और आप क्वेश्चन का जवाब दे देंगे. आपको एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है. अभी इवन एंड ऑड में बहुत कॉन्सेप्ट है. सिर्फ इवन एंड ऑड ये नहीं है कि विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2n, है ना. ये सब सिर्फ चीज नहीं है. तो आपने कहा कि सर इज डेफिनेटली इवन, इट मींस 100% इवन होगा. आपने कहा 3 नंबर इज इवन एंड 2 इज ऑड, तो इवन 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 मिलेगा. एंड 2 ऑड जो है वो इवन टाइम्स है. ये तो मैंने बताया कि अगर ऑड इवन टाइम्स है देन रिजल्टेंट इज इवन. इफ ऑड इज ऑड टाइम्स देन रिजल्टेंट इज ऑड. किसके साथ? प्लस या माइनस के साथ. सो अगर ये 2 ऑड बचा तो आपको एक नया इवन मिलेगा. सारे नंबर इवन है तो डेफिनेटली इवन. स्टेटमेंट 2 फर्स्ट इज करेक्ट. नाउ स्टेटमेंट 2 इज डेफिनेटली ऑड. डेफिनेटली ऑड का मतलब इवन की पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, 100% ऑड होगा. डेफिनेटली ऑलवेज मींस 100%. कैन बी एक आध बार भी अगर आप उसको गलत कर दे तो चल जाएगा, ठीक है. सो 2p प्लस q प्लस 2r माइनस 2s प्लस t इज डेफिनेटली ऑड, इज डेफिनेटली ऑड. हमें पता है कि इसमें 3 इवन है. हम एक काम करते हैं, इफ वी टेक p इज इवन, इफ वी टेक r इज इवन, इफ वी टेक s इज इवन, so it is multiplied by 2. So 2p, 2r and 2s is always even number.
अब जो रिमेनिंग टू पार्ट है Q एंड T, अगर मैंने इसको ऑड ले लिया, ऑड 1 एंड ऑड 2, अब ऑड 1 प्लस ऑड 2 2 टाइम्स है, तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें एक नया इवन नंबर मिला विच इज E4. So all term is even 1, even 2, even 3 and even 4. So it can be even, it can be definitely odd, not possible. So option is correct. Definitely odd, क्या मैंने इसको गलत कर दिया ना, ये even भी हो रहा है. Yes या no? मैंने इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 23 का, ये मैंने इसको इनकरेक्ट करा है, ये कह रहा है इज डेफिनेटली ऑड. मैंने कहा नहीं, देखिए ये इवन है, मैंने दिखा दिया इवन कैसे है. इफ वी टेक P इज अ इवन नंबर, Q R is a even number and S is a even number. So any number multiplied by 2 is even number. 2P is even number, 2R is even number and 2S is even number. If we take Q is odd number, Q1 and T is odd number, O1, O2. So odd number is even times. अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो हमें एक नया इवन नंबर मिलेगा which is E4. So all terms is even number, even 1, even 2, even 3, even 4. If all terms is even number, मैंने पहले बताया independent of sign है, प्लस के साथ हो माइनस के साथ हो, तो there is a possibility to even number. So definitely odd is correct. तो statement 1 is correct. Yes या no? तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, ये याद रखिएगा. करेक्ट है. नेक्स्ट इवन ऑड पे आपका 24 का PYQs है, यूपीएससी CSET PYQs 24. Let P, Q, R and S be distinct positive integer. Distinct positive integer. Let P and Q be odd and R and S be even. P and Q आपको सीधे लिखा है P and E, Q is odd and R and S be even. Consider the following statement कि statement 1 is P minus R का होल स्क्वायर is Q into S is even. इवन है. आपको देखिए यहां पे देखिए S is even. मैंने कहा if S is even, P minus R into Q. अगर एक इवन है, अगर मैं यही तो बताया कि अगर एक भी इवन है और अगर मैंने कहा कि यहां सॉल्व करने के बाद ऑड आ रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन में अगर एक भी इवन इन्वॉल्व हुआ तो रिजल्टेंट इज इवन होगा. मैंने क्या बोला, मल्टीप्लीकेशन में ऑड नंबर की पॉसिबिलिटीज तभी है व्हेन ऑल आर इज ऑड नंबर. जब सभी नंबर आपके ऑड हैं तो ही ऑड नंबर की पॉसिबिलिटीज है. अगर एक भी इवन आ गया देन रिजल्टेंट इज इवन नंबर. तो आपने कहा एस इज अ इवन नंबर, आपने कहा ओके एक इवन नंबर मिल गया, सो रिजल्ट इज इवन नंबर. कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड. आपको एज्यूम करना, कैलकुलेशन करना जरूरत ही नहीं है दोस्तों. अगर आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है आप 10 से 15 सेकेंड में क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं. सेकेंड इज इवन, आपने कहा यस एस इज इवन नंबर, एस इज इवन नंबर. आपको एक भी इवन मिला यहां पे, चाहे ऑड आए चाहे इवन आए, रिजल्टेंट इज इवन नंबर. तो आपका स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन में अगर एक भी इवन आ गया then resultant is even number. If all number is odd then resultant is odd number. Third is odd. अब यहां मल्टीप्लीकेशन नहीं, Q plus R. स्टेटमेंट थर्ड इज Q plus R का होल स्क्वायर एंड P plus S is odd. Q is odd, Q is odd and R is even. R is even and P is odd and S is even. So odd plus even, odd is 1 times, so odd and odd का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9. एक यहां पे समझिएगा, इवन का स्क्वायर इज इवन नंबर एंड ऑड का स्क्वायर ऑलवेज इज ऑड नंबर. इवन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर इज ऑड. इवन के पावर कुछ भी हो, इवन के पावर ऑड या इवन के पावर इवन, रिजल्टेंट इज इवन. एग्जाम्पल ले लीजिए आप. ये सारे आपको ना कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं. जब कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी दोस्तों आपको एक बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में. इवन, आपने इवन ले लिया 2 की पावर 3 इज 8. इवन के पावर इवन 2 की पावर 4 इज 16.
2 इन्वॉल्व हो गया ना, और जब 2 इन्वॉल्व हो गया तो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इवन नंबर. सो ऑड प्लस 1, ऑड इज 1 टाइम्स ऑड का स्क्वायर इंटू ऑड प्लस इवन, ऑड प्लस इवन इज ऑड. सो ऑड 1 का स्क्वायर इज ऑड 1 इंटू ऑड 1 प्लस ऑड 2. ऑल नंबर इज ऑड. कब ऑड होगा, जब सभी नंबर मल्टीप्लीकेशन में ऑड है. इवन नंबर अगर एक बार भी इन्वॉल्व हुआ देन रिजल्टेंट इज इवन. आपने कहा यहां पे सारे नंबर ऑड है सर, तो मैं कहूंगा बिल्कुल ऑड होगा. स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट. करेक्ट है. आपको बिल्कुल एज्यूम करने की जरूरत, कैलकुलेशन करने की जरूरत एग्जाम में नहीं पड़ेगी जब आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो. जब आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. क्यों, P इज ऑड एंड S इज इवन. ऑड इज 1 टाइम्स, ऑड इज 1 टाइम्स, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऑड 2 नहीं कोई दूसरा नंबर ऑड मिलेगा. ठीक है. अब ऑड 1 एंड इवन, यहां पे भी ऑड 1 टाइम्स है तो कोई दूसरा आपको ऑड नंबर मिलेगा. यस या नो. अब ऑड 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 सारे नंबर ऑड है मल्टीप्लीकेशन में, सो रिजल्टेंट इज ऑड. तो हियर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट. नेक्स्ट. देखिए यूपीएससी सी सेट 23 का क्वेश्चन है. Consider the following in respect of the prime number. P is a prime number and Q is a composite number. P is a prime number and Q is can be even. Always की बात नहीं कर रहा है, definitely की बात नहीं कर रहा है. Can be possible है, एक बार भी possible है तो चल जाएगा. Statement 2 is also can be even, can be odd. Possible है एक बार. और statement 2 is देखिए 2P plus C can be odd. क्या possible है? आपने कहा देखो P इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी इवन होता है एंड ऑड होता है. इकलौता इवन प्राइम नंबर, ओनली वन इवन प्राइम नंबर विच इज 2 एंड ऑल प्राइम नंबर इज ऑड. एंड कंपोजिट नंबर में भी आपको क्या मिल जाएगा, कंपोजिट नंबर में भी आपको इवन नंबर एंड ऑड नंबर. ठीक है. 9 इज अ कंपोजिट नंबर विच इज ऑड. 12 इज अ इवन नंबर विच इज कंपोजिट नंबर. तो कंपोजिट नंबर में भी इवन और ऑड होते हैं एंड प्राइम नंबर में ऑल्सो इवन एंड ऑड होते हैं, दोनों में होते हैं. तो 2P प्लस C कैन बी ऑड. इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. अगर P आप इवन भी रखेंगे ऑड भी रखेंगे एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाई 2, सो डेफिनेटली इधर आपको इवन नंबर मिलेगा. डेफिनेटली इधर आपको इवन नंबर मिलेगा. 2P is always even number if you take any value of P. Any value of P. If you take P is a even number, then also 2P is even number. If we take P is odd number, then also 2P is odd number. So here definitely you get even number. And C is a even number and odd number. C may be even number or odd number. Composite number even भी होता है and odd भी होता है. Can be odd. ऑड का मतलब क्या, कंपोजिट नंबर ऑड होता है. अगर एक बार भी ऑड है देन रिजल्टेंट इज ऑड. तो यहां पे आपका इवन भी होगा ऑड भी होगा, लेकिन 2PC प्लस कैन बी ऑड. यस इवन भी है, बट अगर यहां पे दिया होता डेफिनेटली ऑड तो आपका गलत हो जाता है ना. तो ये हमें समझना पड़ेगा. कैन बी ऑड, क्या पॉसिबिलिटीज है ऑड होने की, एक बार भी है तो चल जाएगा. तो आपने कहा सर P इज अ प्राइम नंबर विच मे बी इवन और ऑड. अगर मैं P की वैल्यू यहां पे इवन भी लूं ऑड भी लूं, 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा. हमेशा हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा. लेकिन C, अगर C कंपोजिट नंबर विच इज ऑड, अगर मैं ऑड लूंगा तो ऑड 1 प्लस इवन, ऑड एक बार आया है तो रिजल्टेंट इज ऑड. अब हमने कहा ये डेफिनेटली इवन नंबर है. कंपोजिट नंबर आपका इवन भी हो सकता है. अगर मैंने इवन लिया तो इवन 1 से इवन भी आएगा. तो विच कैन बी इवन विच कैन बी ऑड. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. So PC can be odd. Statement 3 can be odd. Can be odd when possible when P is odd and QC is odd. Odd multiplication में कब possible है, जब सारे नंबर odd है. बार बार चीख के चिल्ला रहा हूं, when सारे नंबर odd है तभी odd होगा. अगर एक भी इवन नंबर इन्वॉल्व हुआ तो रिजल्टेंट इज इवन नंबर. तो PC can be odd. Yes sir, PC can be odd. P is a prime number which is odd. P is a prime number which is odd. Possibilities है odd number की. C is a composite number which can be odd. So result, if every number is odd, so resultant is odd number. Possible है. So can be yes. Can be yes.
Statement 2 is correct and statement 3 is correct. Now statement 1 is P plus C divided by P minus C can be even. कैन भी बात कर रहा है, याद रखिएगा, कैन भी की बात कर रहा है, डेफिनेटली की बात नहीं कर रहा है, ऑलवेज की बात नहीं कर रहा है. ओके, इवन कब पॉसिबल है समझिएगा. मैंने कहा इफ P प्लस सी इज इवन नंबर एंड P माइनस सी इज इवन नंबर. P प्लस सी इज इवन नंबर एंड P माइनस सी इज इवन नंबर. अगर मैंने दोनों को डिवाइड किया हमें K मिला, K. सो इवन इज, पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इवन इज K इंटू इवन नंबर, K इंटू इवन नंबर. K ऑड होगा तो ऑड इंटू इवन से भी इवन मिलेगा. मैंने कहा कि अगर ये हमें इवन हमने ले लिया, P प्लस सी इज इवन, P प्लस सी इज इवन एंड यहां नीचे भी इवन हमने बनाया इज इक्वल टू K. अगर K इज ऑड है तो इवन इंटू ऑड से इवन मिलेगा. अब इफ K इज इवन तो इवन इंटू इवन से इवन भी मिलेगा. पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है. हमने कहा इफ P प्लस सी इज इवन एंड P माइनस सी इज ऑड, ये भी पॉसिबल है कि नीचे ऑड आ जाए. K, हमें K नहीं पता, विच में बी इवन विच में बी ऑड, विच में बी इवन विच में बी ऑड. सो इवन इज K इंटू ऑड. तो इवन कब मिलेगा? व्हेन K इज इवन, व्हेन K इज इवन देन इवन इंटू ऑड से इवन. तो पॉसिबल तो है ना, आपके किसी भी केस में पॉसिबल है. कैन बी की बात कर रहा है, ऑलवेज की बात नहीं कर रहा है, डेफिनेटली की बात नहीं कर रहा है. यस, स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट. एग्जाम्पल है, इफ यू टुक एनी वैल्यू ऑफ P प्लस सी, P इज ए प्राइम नंबर 2, C इज ए कंपोजिट नंबर 6, 2 माइनस 6 इज 8 माइनस 4 माइनस 2 विच इज इवन नंबर. हमें ये करना ही नहीं है, हमें एज्यूम करना ही नहीं एग्जाम में. याद रखिएगा, अगर आप एज्यूम कर रहे हैं तो वहां पे आपका टाइम वेस्ट होगा, आप परेशान होंगे, आपके गलत जाने का अप्रोच होगा. अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा है कि इवन एंड ऑड एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, 1.5 घंटे का कॉन्सेप्ट है इवन एंड ऑड, और यहां से आप पेपर देखिए 4 साल 5 साल को 100% 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं 110%. सो अगर ये प्रोसेस है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. आप जो है 30 सेकेंड 20 सेकेंड 25 सेकेंड में आप बिना एज्यूम किए, कोई भी वैल्यू एज्यूम किए, आप कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं कि ये होगा इवन या ऑड नहीं होगा. ठीक है, यूपीएससी सीसेट 22, कंसीडर द फॉलोइंग. यूपीएससी सीसेट 22, आपको बहुत सा सीसेट पीवाईक्यूज मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां पे जाके. यूपीएससी सीसेट 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द 2 नेचुरल नंबर. यहां पे बात नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, एंड नेचुरल नंबर ऑल्सो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर होता है. एंड अगेन P एंड Q सच दैट P इज अ प्राइम नंबर एंड Q इज अ कंपोजिट नंबर. तो आपने क्या बोला? P इज अ प्राइम नंबर may be even, may be odd. Composite number C may be even and may be odd. Only एक ही even prime number होता है. All prime number is odd. One and only one even prime number which is 2. Yes या no? ये आप सभी ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट 1 इज P क्रॉस Q can be odd number. P क्रॉस Q can be odd number. Odd number means ये odd number तभी होगा जब दोनों odd number हैं. अगर एक नंबर भी इवन आएगा तो इवन नंबर होगा. यस, P इज अ प्राइम नंबर, कैन बी की बात कर रहा है, ऑलवेज की बात नहीं कर रहा है. आप एक केस भी प्रूव करा देंगे आपका सही हो जाएगा. P इज अ प्राइम नंबर कैन बी ऑड, कंपोजिट नंबर कैन बी ऑड, सो ऑड इंटू ऑड इज ऑड. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. Statement 2 is Q by P is a prime number. Q by P is a prime number. Prime number can be even, prime number can be odd. Prime number मतलब even and odd कुछ भी हो सकता है. And अगर even by even करें तो भी हमें even मिल जाएगा. Yes या no? And Q is a composite number. तो composite number जो है आपका even है ना, composite number भी even है और prime number भी even है. So even by even भी is a even number which is prime, can be prime number. एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल वैसे में देखना ही नहीं, Q है यहां, C नहीं दिया, Q दिया है. ठीक है, एंड P प्लस C कैन बी अ प्राइम नंबर.
P plus Q can be a prime number. प्राइम नंबर ऑड भी होगा, इवन भी होगा. सो ऑड में अगर हम आ जाए, अगर मैं कोई भी प्राइम नंबर ले लूं, इवन प्लस ऑड, P इज अ प्राइम नंबर, हमने इवन ले लिया, एंड Q इज अ कंपोजिट नंबर विच इज ऑड. सो हमें एक ऑड बार आया, ऑड प्राइम नंबर होगा, तो तीनों स्टेटमेंट सही है. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. तो अगर आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है दोस्तों, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ये मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं. ठीक है, थैंक यू सो मच. मिलते हैं एक सीरीज 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में, जहां पे आपके 26 प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत बेनिफिट, बहुत ज्यादा ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. थैंक यू सो मच, जिसमें हम मैथ और रीजनिंग दोनों कवर करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.